Hi friends, this is CA Pooja Jain from Commerce Ace and we are here to discuss SE 200, which is overall objectives of independent auditor and conduct of audit in accordance with SAs. Friends, we will refer it as OICAS, but आपको याद रखना है कि एग्जाम में आपको फुल फॉर्म ही लिखना है. Now, SE 200 कहता है कि एज एन ऑडिटर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है. This expectation is that you have to obtain a reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material misstatement and is prepared using applicable financial reporting framework. I know ये थोड़ा टेक्निकल हो गया. We will divide it into parts and study. See, as an auditor आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप reasonable assurance obtain करिए. Now friends, reasonable assurance होता है high level of assurance and not the absolute one. No auditor can give you 100% assurance or absolute assurance कि जो data audit की गई है that is giving 100% true and fair view. Now, this is because of inherent limitations of audit which we will discuss in subsequent lectures. For now, आपको ये याद रखना है कि as an auditor आपको reasonable assurance obtain करनी है. Now, ये reasonable assurance आपको obtain करनी है on the financial statement, which is nothing but the set of your P&L, balance sheet, accounting policies, notes to accounts, etc. As an auditor आपको assure करना है कि जो financial statements है they are correctly stated, there is no wrong presentation or no misstatement. एंड आपको ये भी अश्योर करना है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड यूजिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. नाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अडॉप्ट करती है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फाइनेंशियल डेटा, keeping in mind the nature of business entity, the applicable laws, the nature of functioning, etc. For example, if we are doing audit of a bank, then बैंक की the way of presentation of data, जो financial income report होगी, जो expenses report होंगे, वो काफ़ी different होंगे. That will be as governed by the banking regulations and all. So in nutshell, as CA, as an auditor, आपसे expect किया जाता है कि आप reasonable assurance obtain करिए on the financial statements to check whether it is free from the material misstatement and is prepared using applicable financial reporting framework. Now friends, ऐसे 200 है वो सब कंपनीज को, सब ऑडिट क्लाइंट्स को applicable है. It is applicable to all the business entities irrespective of their firm, size or nature of business and is again applicable with effect from 1st April 2010. ना यहाँ हमने डिस्कस किया कि एज एन ऑडिटर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या पर्पस है ऑडिट की. ना हाउ विल यू मीट दिस पर्पस इज फर्दर डिफाइंड इन एस ए 200 बाय लेइंग डाउन सर्टन रिक्विजिट्स और आई वुड से कुछ प्रिंसिपल डिफाइन किए गए हैं जहाँ से आप एस ए 200 की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं. The requisitions are listed below. They are, as an auditor, it is expected that you comply with the ethical requirements. Second expectation is कि आप ऑडिट करते वक्त प्रोफेशनल स्केप्टिज्म अप्लाई करिए, आप ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म करिए कंसिडरिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आप प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करिए व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट. फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करिए. और फिफ्थ रिक्वायरमेंट है कि आप सारे जो भी रिलेवेंट एसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो आपकी बिजनेस एंटिटी को एप्लीकेबल है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो चेक करिए. आई नो ये रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, हम इसे इजी वे में याद रखेंगे. वी विल रिफर इट एज EPAS विच इज EPPAS. नाउ फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे P 2 टाइम्स है. वन इज फॉर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड वन फॉर प्रोफेशनल जजमेंट. ये सारे रिक्वायरमेंट्स हम वन बाय वन डील करेंगे सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में. योर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एज एन ऑडिटर आपको एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है. नाउ व्हाट इज दिस एथिकल रिक्वायरमेंट? दिस इज नथिंग बट हमारे इंस्टीट्यूट ने कोड ऑफ एथिक्स प्रिस्क्राइब किए हैं. एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जब ऑडिट करें तो आप ये सारे ट्रेड्स observe and follow करें. You should be integrant, you should be objective towards your work, you should apply professional competence, you should be very careful in your behavior and you have to also maintain confidentiality of the client's business. Now ये काफ़ी natural expectation है institute की कि जब आप audit कर रहे हैं
तो आप अपनी गवर्नेंस मेंटेन करिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट है प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट विद प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। नाउ फ्रेंड्स, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एक एटीट्यूड होता है जहां आप हमेशा अलर्ट रहते हैं, आपकी माइंड में ऑलवेज क्वेश्चंस होती है टू द कंडीशंस विच इंडिकेट कि यहाँ पे कुछ मिस स्टेटमेंट है, कुछ मिस रिपोर्टिंग है। ना दैट कुड बी ड्यू टू एरर और फ्रॉड, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इंडिकेट कर रही है कि मुझे ऑडिट एविडेंस को और डिटेल में चेक करना है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। यू हैव टू बी अलर्ट टू द सिचुएशंस which give contradictory audit evidence. You have to be alert to the situations which question on reliability of documents which you have obtained from the management or the company accounts team or other people. You also have to be alert while doing the audit and check कि कहीं आपको additional audit evidence तो नहीं collect करने हैं। So ये जो attitude होती है of being alert, that is expected from you while performing the audit. थर्ड रिक्विजिशन है आपको प्रोफेशनल जजमेंट परफॉर्म करना है while executing the audit. Now it says that what is professional judgment? तो ये दिस इज नथिंग बट आपने आज तक ऑडिट करते हुए जितनी भी आपने नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, आप उसे अप्लाई करें, of course within the context provided by accounting, auditing and ethical standards. Now आप ये नॉलेज किस चीज़ में अप्लाई करेंगे? For making informed decision about the course of action which you have to take as an auditor, considering the nature of circumstances of the audit engagement. So friends, in short, आपकी जो भी experience है, knowledge है, while performing audit, आपको ये apply करनी है in relation to few aspects of audit, that is materiality and audit risk, कि आप कितना material level decide करते हैं, कितने लेवल तक की वैल्यू की आपको ऑडिट करनी है, कितने वैल्यू तक के लेवल की आपको डेटा ऑब्टेन करनी है, दैट इज़ रिलेटेड टू मटेरियलिटी। आपको ये भी देखना है कि आपकी जो ऑडिट प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर रहे हैं टू डू दी ऑडिट, वेदर दैट इज़ सफिशिएंट और नॉट। आपकी अगर पास एक्सपीरियंस है फॉर द बिजनेस एंटिटी फॉर विच यू आर ऑडिटिंग, या फिर सिमिलर इंडस्ट्री के लिए आपने ऑडिट किया हुआ है, तो आपको पता होता है कि भैया कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर मुझे अप्लाई करनी होती है वेल परफॉर्मिंग दी ऑडिट। फिर आपका जजमेंट आपको ये भी गाइड करता है कि आपको जो मैनेजमेंट एस्टीमेट मिली है वो कितनी रिलायबल है और मैं किस एक्सटेंट तक इस पर रिलाई कर सकता हूँ। सो इन नटशेल आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी होती है जब आप ऑडिट परफॉर्म करते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ SA 200 इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। ना ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर in arriving at the conclusion on which his opinion is based. So friends, आप जब ऑडिट कर रहे हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स या डेटा कलेक्ट की है जिसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि चीज़ें करेक्ट या इनकरेक्ट है। सो जो डॉक्यूमेंट या डेटा और जो सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन है, दैट विल बी रिगार्डेड एज योर ऑडिट एविडेंस। नाउ फ्रेंड्स, SA 200 आपसे ये भी कहता है कि आप सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करिए। सफिशिएंट वुड रिलेट टू द टर्म क्वांटिटी। आपको क्वांटिटेटिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि कंपनी ने परचेजेस जो है वो ओवर प्राइस बुक की है, हाई वैल्यू पे बुक की है। इन दैट केस आप सिर्फ पूरे ईयर में 1 या 2 इनवॉइस का रेफरेंस देके नहीं बोल सकते कि यहाँ पे मुझे वैल्यू ज़्यादा लग रही है परचेजेस की एज कम्पेयर टू माई नॉर्मल परचेजेस। फॉर दैट एटलीस्ट आपको 10 to 12 और 15 डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ परचेज और साइज ऑफ द बिजनेस एंटिटी, आपको डिसाइड करना होगा कि कितनी क्वांटिटी में आपको परचेज इनवॉइस ऑब्टेन करने हैं जो आपको ओवर प्राइस लग रहे हैं। ऑल्सो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लें। ना फ्रेंड्स, अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है वो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड होता है। जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाए कि वो जो ऑडिट एविडेंस आपने कलेक्ट किया है इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब उसकी रिलेवेंस होनी चाहिए, आप उस पर रिलाई कर सकते हो, वैसा वो एविडेंस होना चाहिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जब आप बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं तो आप किस पर रिलाई करेंगे? आप बैंक स्टेटमेंट जो बैंक से आई हुई है, क्लोजिंग बैलेंसेस है, उस पर रिलाई करेंगे। तो दैट इज़ अ क्वालिटेटिव आई वुड से एविडेंस फॉर यू, जिस पर रिलाई करके आप अपनी ओपिनियन फॉर्म करेंगे कि भैया जो बैंक बैलेंसेस है वो करेक्टली रिपोर्ट हुई है कि नहीं हुई है। ना ये ऑडिट एविडेंस आप कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? तो ऑडिट एविडेंस आपको मिल सकती है इंटरनल सोर्सेज से, विच इज़ क्लाइंट्स ऑर्डर बुक्स,
स्टॉक स्टेटमेंट, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, जो भी डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपकी ऑडिट क्लाइंट की ऑफिस प्रोमाइसेस में या बिजनेस प्रोमाइसेस में अवेलेबल है, those will be your internal source to collect the audit evidences. And when we talk of the external sources, आप थर्ड पार्टी से लेजर कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप इंडस्ट्रियल रिपोर्ट स्टडी कर सकते हैं आपकी क्लाइंट की, एंड वहाँ से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं फॉर द बिजनेसेस, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट पर रिलाई कर सकते हैं. जो भी सोर्सेज आपको कंपनी के बाहर से मिलेगी, जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी की बाहर से मिलेगी, दैट विल बी रिगार्डेड एज एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस. और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आपको ऑडिट एविडेंस इस तरह से ऑब्टेन करनी है कि आपकी ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाए. नाउ व्हाट इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट एज एन ऑडिटर आप इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, इवन दो इट इज मटीरियली मिसस्टेटेड. सो कभी कभी क्या हो जाता है कि आप जो ऑडिट एविडेंस पे रिलाई करते हैं, मे बी दैट इज नॉट करेक्ट, मे बी दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, या फिर दैट इज नॉट सफिशिएंट टू फॉर्म द ओपिनियन. आपकी ऑडिट की जो आप ओपिनियन देते हो कि हाँ भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, आप कुछ ऑडिट एविडेंस पे रिलाई करके देते हो, पर ऑडिट रिस्क ये कहता है कि आपकी ये जो रिलायंस है वो शायद सही नहीं है, एंड इन दैट केस आप गलत कंक्लूजन दे दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. सो आपको एज एन ऑडिटर ऐसी एविडेंसेस ऑब्टेन करनी है विच विल रिड्यूस योर ऑडिट रिस्क, दैट इज रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग misstatement or misrepresentation to the minimum. Now we'll do with the last requisite of SE 200, which says as an auditor you have to check whether the business entity has complied with one or more relevant essays and also evaluate the possibility of not meeting any requirement. So friends, this is very simple. क्या होता है कि जब आप ऑडिट करते हैं तो आपको काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो है वो फॉलो करने होते हैं while performing the audit. ना आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चेक करिए कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हुई है कि नहीं हुई है. ना यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन ऑडिट एसेज बताऊंगी जो हर बिजनेस एंटिटी को एप्लीकेबल होगा, वेदर इट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस और ऑडिट सैम्पलिंग. ये ऐसे एसेज है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जो आपको हर बिजनेस एंटिटी की ऑडिट करते वक्त फॉलो करने होंगे. एज एन ऑडिटर आपको चेक करना है कि इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो रही है या नहीं, एंड अगर नहीं हो रही है तो व्हाट यू हैव टू डू यू हैव टू कंसिडर गिविंग क्वालिफाइड ओपिनियन विच इज़ रिस्ट्रिक्टिव ओपिनियन, या फिर आपको कंसिडर करना है कि आप ऑडिट इंगेजमेंट ही विड्रॉ कर ले. नाउ व्हाट एवर इट इज़, एज एन ऑडिटर यू विल हैव टू डॉक्यूमेंट इट. सो फ्रेंड्स, now we are done with all the requisites of SAR 200. We'll quickly revise them one by one. First is comply with ethical requirements. Second is plan and perform audit with professional skepticism. Third is apply professional judgment while performing the audit. Fourth is obtain sufficient and appropriate audit evidence to reduce risk. And fifth is to comply with one or more relevant essays and evaluate the possibility of not meeting any requirement. And इसे short में हम याद रखेंगे as EPAS. Now friends, we are